Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very good evening. I'm Khatija Zishan, your host for today. On behalf of the AMP team, I welcome you all to the Career Guidance Seminar. Before we start the talk, let's catch a glimpse of what AMP is all about. Can we have the slides, please? AMP stands for Association of Muslim Professionals. We have completed 13 years striving for peace and progress. AMP is a non-profit organization started in the year 2007, registered in India, USA, UK, and Australia. It has been serving our country in the field of education, employment, and empowerment. It has a vision to positively impact lives of 10 million people by 2030, inshallah. AMP's mission is to serve the underprivileged to benefit the society and nation as a whole. AMP's vision to be a model community which is advanced in education, socially progressing, culturally vibrant, politically influential, and economically dynamic. Next. Some of the prominent achievements of AMP. Under the school development programs, 2,800 plus skill development lectures were delivered, connected with more than 800 schools. 2,81,000 students were benefited, and more than 100 teachers training and parenting workshops were conducted. Employment Assistance Cell organized 360 plus job fairs and job drives, which helped in the employment of 21,000 plus candidates. More than 200 employability trainings were conducted and 17,000 plus degree students were benefited. Scholarships and self-employment. More than 800 higher education scholarships were sponsored, 860 plus towards orphans education. More than 400 families were benefited under this program. AMP's Resource Center has 660 plus career counselors and 2,500 plus students have been counseled. 50 plus career guidance documents and 1,500 plus career chart distribution can be found. Awards and partnerships. 380 plus renowned educationalists connected and awarded, 50 plus partnerships including state governments and 100 plus partner NGOs. Next. In the year 2020, AMP launched new digital initiatives which include indiazakat.com, the indiamentors.com and empowerjobs.com. indiazakat.com is India's first Zakat crowdfunding platform where Zakat seekers and Zakat givers are unified. Its objective is to serve the needy. The indiamentors.com is a mentorship portal for students from different backgrounds to be mentored by esteemed members of the community. Students, please register at the indiamentors.com as mentees. It's free. You will be allotted a mentor as per your needs. They will be guiding you with your studies. And empowerjobs.com is a free portal to help job seekers connect with the employers. It also offers skill training and employability training programs. Empower Jobs is specially created by industry professionals to help the freshers and those affected by COVID-19 pandemic. Next. AMP's reach. It has an on-ground presence of more than 140 active chapters in 26 states in 16 countries with 6,000 plus active members. It also has an online presence of 1,25,000 plus members and professionals connected on various social media platforms. Next. To join AMP, visit www.ampindia.org/joinamp. We also have a YouTube channel where you can find the career guidance seminar videos. And we are now live on Facebook also. If you have any questions, please post it in the Q&A box. We will address it at the end of the session. Now, I would like to introduce our speaker for today, Mr. K. Taufiq Ahmed, Assistant Professor at Mazharul Ulum College, Ambur, Tamil Nadu.
He has 7 years of experience as an assistant professor in the field of corporate secretaryship and business administration, 4 years experience as an exam manager, and also serves as a placement officer in career guidance and placement cell of Mazharul Ulum College. He is also a part of Ambur Talent Connect, ATC, where they organize several motivational and career counseling programs for the students' upliftment. He has published 14 research articles in various journals such as Scopus, UGC Carelist, etc. A very warm welcome to you from AIM team. Thank you. Over to you. My dear participants, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है करियर इन बिजनेस मैनेजमेंट। हर एक को अपने करियर के बारे में फ़िक्र होती है कि हम कौन सी फील्ड में अपना करियर बना सकें जिसमें हम फ्यूचर में ना पछतावे। हम ऐसी फील्ड चूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से हमें आगे चलकर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ एंड बहुत सारे स्कोप्स हो, क्योंकि हमें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि आज सिनेरियो देखें तो एजुकेटेड पीपल्स जो हैं, दोज हु आर एजुकेटेड, जिन्होंने अपना स्ट्रीम सही तरीके से चूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुई कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग स्टिल अनएम्प्लॉयड हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये वाज़ह किया है कि हिंदुस्तान के अंदर अभी द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बढ़ गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि असल रीज़न हमें जो है अपना स्ट्रीम को सही माने में सेलेक्ट नहीं किया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी करियर बिजनेस मैनेजमेंट में कैसे होगी। अगर हमने बिजनेस मैनेजमेंट में अपने करियर को चूज़ किया तो इसके अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या स्कोप्स मिलेंगे, इसके बारे में हम आज इस सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम इस बात को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि कोई भी स्ट्रीम हो, अगर आप कोई भी फील्ड से हो, या अकाउंटिंग फील्ड से हो, कॉमर्स फील्ड से हो, इंजीनियरिंग फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड से हो, अब चाहे जो फील्ड से हो, पहले इसकी बेसिक स्किल्स आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम इस वेबिनार अटेंड कर रहे हैं करियर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के बारे में हम अपना करियर ढूंढने के लिए और अपना करियर बनाने के लिए आज हम आगाह हैं। तो हम पहले इस बात को जानना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट से हमें क्या हासिल हो सकता है। एक बात यहाँ आप ध्यान से सुनिए कि दुनिया के अंदर हर एक चीज़ के लिए स्कैरसिटी है और हर एक चीज़ के लिए प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज है, और दुनिया के अंदर वाहिद मैनेजमेंट एक ऐसा स्ट्रीम है जहाँ भी आपको जाएं तो आपके लिए स्कोप है, तो आपके लिए वहाँ प्लेसमेंट है। लाइक आप हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज ले लो, लाइक आप होटल इंडस्ट्रीज ले लो, लाइक आप लेदर इंडस्ट्रीज ले लो, लाइक आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ले लो, लाइक आप जो भी हो एमएनसीज, जो भी एमएनसीज ले लो, जहाँ भी जाओ मैनेजमेंट के लिए ऑलवेज डोर ओपन्स फॉर मैनेजमेंट। सो पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इट्स नथिंग बट इट इज़ ए प्रोसेस of managing a organization in effective manner. Management is nothing but it's a process of managing a organization in effective manner. जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी इंडस्ट्रीज हो, उस इंडस्ट्रीज को इफेक्टिव मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। एक कंपनी है और एक इंडस्ट्री है और किसी भी चीज़ हो, उसकी ग्रोथ,
उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसकी अपलिफ्टमेंट पूरा जो है किसके बिहाफ में है, किसके बिहाइंड में है? इट बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट. इफ यू हैव ए गुड मैनेजमेंट देन यू हैव ए गुड फ्यूचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपके पास मैनेजमेंट सही माने में है तो आपके पास क्या होगा? तो आपके इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, आपके बिजनेस डेवलप होगा, आपका बिजनेस अच्छी तरह ग्रोथ होगी, और आप जो है आसानी के साथ मैनेजमेंट के जरिए से, प्रॉपर इफेक्टिव मैनेजमेंट के जरिए से आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. तो मैनेजमेंट क्या है? तो एक अकॉर्डिंग टू एक डेफिनेशन के जरिए से मैं बताता हूँ. मैनेजमेंट इज नथिंग बट व्हाट मैनेजर डस. मैनेजमेंट इज नथिंग बट व्हाट मैनेजर डस. एंड और एक डेफिनेशन के जरिए से आपको वाज़ेह करता हूँ. मैनेजमेंट इज नथिंग बट इट इज बिगिंस फ्रॉम प्लानिंग एंड इट एंड्स विद द कंट्रोलिंग. तो मैनेजमेंट एक असल कॉन्सेप्ट है. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक मिसाल देता हूं जिसके ज़रिए से आप इस कॉन्सेप्ट को वाज़ेह हो सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं. वो क्या है कि इन द ईयर 2019 बेंगलुरु में एक सेक्टर है, आईटी सेक्टर, इन्फोसिस. उसने मैनेजर पोस्ट के लिए कॉल फॉर किया. तो मैनेजर पोस्ट के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किए. फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किए. बहुत सारी इसमें एमबीए फिनांस भी थे, एमबीए एचआर भी थे, एमबीए मार्केटिंग भी थे, कॉमर्स स्ट्रीम के भी थे, और बहुत सारे वेरियस स्ट्रीम्स के थे जिन्होंने अप्लाई किया फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन इन्फोसिस सेक्टर, इन्फोसिस इंडस्ट्री में. जब इन्फोसिस इंडस्ट्री ने इंटरव्यूज कलेक्ट की, इंटरव्यूज चलाई, तब इंटरव्यूज में बहुत सारे कंडक्ट किए इंटरव्यूज. उन्होंने पहले जो है प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज रखा, फिर ग्रुप इंटरव्यूज रखा. इसी तरह शॉर्टलिस्ट करते करते जब फाइनल इंटरव्यूज में पहुंचे तो 3 आदमी सेलेक्ट हुए फॉर फाइनल इंटरव्यू. फॉर विच पोस्ट? फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर. एक मैनेजर पोस्ट के लिए बहुत सारों ने अप्लाई किया, और बहुत सारे अप्लाई करके आखिर में बहुत सारे इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद, शॉर्टलिस्ट करने के बाद, आखिर में सिर्फ 3 अफराद बचे फाइनल इंटरव्यू में पार्टिसिपेशन के लिए. तो इंटरव्यूअर ने कहा कि एक डेट तय हुई कि कल आ जाओ कि आपका फाइनल इंटरव्यू होगा. तो दूसरे दिन फाइनल इंटरव्यू हुआ. तो एक कमरे के अंदर इंटरव्यूअर्स थे और बाहर 3 जो कैंडिडेट थे वो 3 कैंडिडेट बैठे हुए थे. तो इंटरव्यूअर ने पहले कैंडिडेट को बुलाया. तो पहले कैंडिडेट आकर इंटरव्यूअर से जो है वो विशेस किया, ग्रीटिंग्स की. उसके बाद इंटरव्यूअर ने कहा कि से समथिंग अबाउट योरसेल्फ. तो पहला वाला जो था उसने जो है अपनी सारी डिटेल्स बयान की कि मैं फुला जगह से हूँ, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड फुला है, मेरा स्ट्रीम फुला है, और मैं जो है अभी फुला इतने ईयर की एक्सपीरियंस है, और मैं अभी आपके इंडस्ट्री में इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया हूँ. तो सारे बात जो है इंटरव्यूअर ने इत्मीनान से सुना. सुनने के बाद एक क्वेश्चन पूछा. इंटरव्यूअर के हाथ में बहुत सारे पेपर्स थे, यानी बंच ऑफ पेपर और देयर. एक बहुत सारे पेपर जो है इंटरव्यूअर के हाथ में थे. तो इंटरव्यूअर ने क्या कहा, उस पेपर को सामने जो टेबल रखी हुई थी उस टेबल में बिखेर दिया, शफल्ड किया, और शफल्ड करके कहा कि इसको अरेंज करो अल्फ़ाबेटिक वाइज, इसको अरेंज करो अल्फ़ाबेटिक वाइज. तो जो पहला कैंडिडेट था उसने जो है इसको अल्फ़ाबेटिक वाइज अरेंज किया. अल्फ़ाबेटिक वाइज अरेंज करके इसको जो है इंटरव्यूअर के हवाले कर दिया. तो इंटरव्यूअर ने कहा कि आप बाहर इंतज़ार कीजिए, हम आपका जो है रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे. तो फिर सेकेंड कैंडिडेट जो था, सेकेंड कैंडिडेट को बुलाया. जो सेकेंड कैंडिडेट जो थे, तो सेकेंड कैंडिडेट को बुलाया. तो इंटरव्यूअर ने फिर वही सवाल किया कि से समथिंग अबाउट योरसेल्फ. तो उसने वही जो अपनी बातें थी सब बताई. सब बताने के बाद इंटरव्यूअर ने फिर कहा, वाई आई शुड नॉट आस्क द सेम क्वेश्चन टू यू. क्यों मैं वही क्वेश्चन आपके पास फिर नहीं पूछूं. तो पूछकर जो है हाथ में जो पेपर्स बंच थी वो पेपर्स को जो है
टेबल के अंदर शफर किया, टेबल के ऊपर शफल किया और टेबल के ऊपर स्प्रेड किया। करने के बाद कहा कि अरेंज इट नंबर वाइज, सीरीज वाइज। तो बोला कि जो है पेपर को बिखेर कर कि इसको जो है आप जो है सीरियल नंबर वाइज जो है इसको अरेंज करो। तो सेकेंड कैंडिडेट था, उसने भी क्या किया, उसको सीरियल वाइज अरेंज करके जल्द अज जल्द अरेंज करके इंटरव्यूअर के हाथ में सौंप दिया और कहा कि सर ये आपने जो काम बताया मैंने कर दिया। तो उसने कहा कि चलो आप भी बाहर इंतज़ार करो, हम आपको रिजल्ट सुनाएंगे। तो तीसरा आदमी था, तो तीसरा कैंडिडेट को बुलाए और बुलाकर पूछा, वही सवाल पूछा कि आप से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो उसने कहा कि मैं फला हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वही इंटरव्यूअर ने वही सवाल किया कि वाई आई शुड नॉट आस्क द सेम क्वेश्चन टू यू, क्यों मैं वही क्वेश्चन आपके पास ना दोहराऊं। ये कहकर उसने क्या किया, वो वही जो पेपर्स की बंडल थी, डॉक्यूमेंट्स के बंडल थे, उस बंडल को टेबल के ऊपर बिखेर दिया और बिखेर कर कहा कि इसको डेट वाइज अरेंज करो। तो उसने देखा कि उस कमरे के बाहर एक प्यून खड़ा है। तो उसने प्यून को बुलाकर कहा कि चलो इसको डेट वाइज अरेंज करो। तो प्यून ने उसको डेट वाइज अरेंज करके उस कैंडिडेट के हाथ में दिया। तो वो कैंडिडेट अपने पास लेकर इसको इंटरव्यूअर के हाथ में दे दिया। उसके बाद जो है इंटरव्यूअर पूछने लगा कि मैंने आपको बोला था कि आप अरेंज करें, आप अरेंज करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा कि सर आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, मैनेजमेंट इट्स कम्स फ्रॉम द मैनेजर and management is a part of a manager and manager is a part of the management. तो उसने कहा I have applied for the post of manager. Management is nothing but management is getting work from other. Management is not about working. Management वो नहीं है जो अपने आप को पूरी जिम्मेदारी ले अपने आप पर वर्क करे। Management वो है जो getting work done from others, जो दूसरों के पास से वर्क ले, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। तो इस ब्रीफ डेफिनेशन के जरिए से, एग्जाम्पल के जरिए से आप सबको पता चला होगा कि मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मैनेजमेंट का मतलब हम जो है गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स, जो काम जो है हम जो है दूसरों से लेना है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग आवरसेल्फ, हमें खुद करने के बजाय दूसरों से काम लेना ही मैनेजमेंट है। तब आप अभी सोच लो कि आप जो है करियर गाइडेंस सेमिनार अटेंड कर रहे हैं मैनेजमेंट में, तो आप सोचिए कि आपको जो है काम करना है या काम लेना है। इफ यू वांट टू वर्क और इफ यू वांट टू गेट वर्क फ्रॉम अदर, एक जो है आप काम करना है और एक जो है आपको काम लेना है। काम करने के लिए देयर इज नो नीड एनी क्वालिफिकेशन, आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। अगर आप 5th पढ़ो, 8th पढ़ो, 10th पढ़ो और 12th पढ़ो, PUC कुछ भी हो, आप काम कर सकते हैं। मगर आप काम कर सकते हैं, मगर आपको काम लेने के लिए आपके लिए सलाहियत चाहिए, कैपेबिलिटी चाहिए, टेक्निक्स चाहिए, स्किल्स चाहिए। आपके पास वो जो है कैपेबिलिटी चाहिए कि कैसे हम जो है काम ले दूसरों से। तो अभी आप यहाँ पर डिसाइड कीजिए कि आप जो है कोई 10th पढ़ रहा होगा, कोई 12th पढ़ रहा होगा, कोई 11th पढ़ रहा होगा, तो आप यहाँ से डिसाइड कीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। आप जो है फ्यूचर में काम करेंगे या काम लेंगे। अगर काम करेंगे तो आपके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं। अगर आप काम लेंगे तो जरूर आपके पास जो है, हमारे पास जो है आपके लिए सोल्यूशन है, जो हम आगे स्लाइड में देखेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, सो करियर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा ऑप्शन चूज करें। कोई कहता है कि मार्केटिंग फील्ड बेहतर है, कोई कहता है कि फिनेंस फील्ड बेहतर है, कोई कहता है कि फॉरेन ट्रेड बेहतर है, कोई कहता है कि इंटरनेशनल बिजनेस बेहतर है, कोई कहता है कि HR बेहतर है, कोई कहता है कि टूरिज्म बेहतर है। कौन सा फील्ड हम जो है चूज करें, कौन सी करियर हम जो है अपनाएं, क्योंकि ये करियर जो आप चूज करेंगे इसी की बुनियाद पर आपकी फ्यूचर होगी। आपने जो है सही दिशा पर सही गोल आपने चूज किया और आपका टारगेट सही रहा, तो आप जो है डेफिनेटली सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये जो रास्ता है करियर सिलेक्शन का, ये रास्ता सक्सेस तक पहुंचता है। आप जो है सही गोल चूज करने की वजह से, आप जो है सही टारगेट अपनाने की वजह से आप जो है क्या हो सकते हैं, सक्सीडेड हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं।
If you want to become a successful, you have to choose a right one. You have to choose a right path. You have to choose a right, correct one. तो अब चलिए हम इस मैनेजमेंट में बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, इसमें अभी हमें कंफ्यूजन है कि हम कौन से स्ट्रीम को जाएं, कौन से स्ट्रीम हम अपनाएं, कौन से स्ट्रीम हम सेलेक्ट करें अपने करियर के लिए। तो इसके लिए पहली बुनियादी चीज जो है वो 12th के बाद आपको बीबीए करना पड़ेगा। चाहे अब जौन सी भी फील्ड में जाओ, बिजनेस रिलेटेड, आपने जो है बिजनेस मैनेजमेंट के एतबार से जौन सी भी फील्ड में जाना है, तो पहले आपको सही तरीके से 12th कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है फील्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये कैसा फील्ड कैसा सेलेक्ट करेंगे, हाउ शुड बी सेलेक्ट our field, how should we select our career, how should we select our destination. We have to select based on our capability. हम कैसा जो है फील्ड सेलेक्ट करें, हम कैसे जो है हमारी जो है कौन से फील्ड के लिए हम मुनासिब हैं, कौन से फील्ड के लिए हम मुस्तहिक हैं, ये कैसे मालूम होगा, ये पता चलेगा अपनी कैपेबिलिटी के जरिए से। बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी, वॉट एवर द कैपेबिलिटी वी हैव। लाइक बहुत सारे लोगों को इनोवेटिव क्रिएटिविटी बहुत पसंद होगा, एंड बहुत सारों को एनालिटिकल स्किल रहेगा, एंड बहुत सारों के पास कम्युनिकेशन स्किल रहेगा, एंड बहुत सारों के पास लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, और बहुत सारों के पास मोटिवेशनल स्पिरिट रहेगा, एंड बहुत सारों के पास जो है वेरियस स्किल्स रहेंगे। ह्यूमंस के पास जो है ह्यूमंस कैरेक्टर्स वेरीज फ्रॉम अदर्स, हर एक का कैरेक्टर डिफरेंट है। तो हमें जो है पता चलेगा कि बेस्ड ऑन हमें किसके लिए जो है मुस्तहिक हैं। लाइक मेरे पास जो है मोटिवेशंस है, तो मैं मोटिवेशंस को लेकर जो है हम ह्यूमन रिसोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मेरे पास जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी लेकर हम जो है फिनेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए से मार्केटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन एंड मीडिया मैनेजमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो है एनालिटिकल स्किल्स है, सो उस एनालिटिकल स्किल्स के जरिए से फिनेंस को, फॉरेन ट्रेड्स को, एंड एज वेल एज हमें लॉजिस्टिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हाउ कुड वी सेलेक्ट? वी कुड सेलेक्ट बेस्ड ऑन आवर कैपेबिलिटी। बट वन थिंग, मैनेजमेंट इज ओपन फॉर ऑल। मैनेजमेंट जो है हर एक के लिए ओपन है, हर एक के लिए जो है मैनेजमेंट खुला हुआ है। बट कौन से फील्ड कैसे सेलेक्ट करेंगे, इट इज बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी। तो हमारे कैपेबिलिटी को बेस करके हम सेलेक्ट करना चाहिए कि हम कौन से फील्ड के लिए फिट हैं। तो मैं इस सेशन में आपके लिए कुछ ऐसे चीजें आपको बताता हूं जिसकी वजह से आपको आसानी होगी। लाइक कौन से फील्ड में स्कोप ज्यादा है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं जो मैंने स्क्रीन में प्रेजेंट किए, लाइक बीबीए in finance, BBA in foreign trade, BBA in banking insurance, BBA in hospitality, BBA in information technology, BBA in hospitals and healthcare management, BBA in HR, BBA in management, BBA in logistics, BBA in travel and tourism, BBA in communication, BBA in sports management। ये बहुत सारे स्ट्रीम्स हमारे पास है, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे स्ट्रीम्स, बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस में ऑफर करते हैं। जैसे कि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ले लो, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहता, किसी कॉलेज का नाम यहाँ मेंशन नहीं करना चाहता। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशन, बेस्ड ऑन दैट, जैसा जो है हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, बेस्ड ऑन दैट डिमांड्स जो है हर एक के लिए आगे पीछे होता ही रहता है। तो हमें क्या करना, तो हमें जो है बेहतर फील्ड जो है उसको हमें चूज करना है। सेलेक्ट, जो हम ऐसा फील्ड को सेलेक्ट करेंगे जिस पर स्कोप हमेशा के लिए हो, इस पर स्कोप जो है हमेशा के लिए हो। लाइक आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं, बीबीए इन फिनेंस, आपने चूज किया फिनेंस। तो फिनेंस क्या है? फिनेंस इज नथिंग बट इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट, इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ए इंडस्ट्री और ए फर्म। ये जब आपका एक इंडस्ट्री होगा, एक फर्म्स होगा, तो वहाँ पे फंड्स का फ्लो ज़्यादा होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, कहाँ पे कितना अमाउंट एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, और कहाँ पे हमने कितने अमाउंट को खोया, कहाँ पे हमने कितना रेवेन्यू पाया। तो ये बहुत सारे फिनेंशियल जो फ्लो हैं ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्योंकि फिनेंस एक ऐसी चीज़ है, विदाउट फिनेंस नथिंग इज पॉसिबल। Finance is like a backbone of an organization.
Finance is like a lifeblood of an industry or organization. Without finance you can't do anything. आप finance के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते. फिनांस ही जो है फिनांस की वजह से ही एक इंडस्ट्री उरूज में आता है, और फिनांस की वजह से ही एक इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज की अपलिफ्टमेंट, इंडस्ट्रीज की सस्टेनेबिलिटी, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ, ये सारी चीज किसके पीछे है? तो इसके पीछे है फिनांस. If you have a proper financial background, then it may has an positive impact. अगर आपके पास proper financial background होगा तो इसका नतीजा आपको जाहिर में आएगा. इसकी वजह से आपकी बिजनेस ग्रोथ होगी, इसकी वजह से आप जो है आपका बिजनेस जो है अपलिफ्ट होगा, इसकी वजह से आप मार्केट में फेम होगे, इसकी वजह से आपको जो है मैच्योरिटी पीक स्टेज मिलेगा. तो इसलिए आज के स्ट्रीम में फिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिनेंस के अंदर जो बहुत सारे जो लैकिंगनेस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये साइकोलॉजी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये थिंक करते हैं कि सर बेसिकली आई एम वीक इन फिनेंस, आई डोंट नो, एंड आई डोंट नो हाउ आई कैन सर्वाइव इन फिनेंस. हम कैसे इसमें सर्वाइव कर सकते हैं? तो ये हमारा एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. बट एक्चुअली अगर हम करियर के बारे में देखें, अगर हम अपना गुड करियर बनाएं, तो फिनेंस इज ए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम फ्रॉम विच वी कैन क्रिएट अवर गुड करियर, वी कैन बिल्ड अवर गुड करियर. अपने आप को, अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हो तो फिनेंस एक ऐसा स्पेशलाइजेशन है, ऐसी एक स्ट्रीम है जहां पर आप आसानी अपना करियर देखते हैं, वो भी गारंटी के साथ. क्यों? चाहे आप जोन सी भी इंडस्ट्री ले लो, चाहे वो मेडिकल लाइन की हो, चाहे वो जो है इंडस्ट्रीज की हो, चाहे वो बीपीओ हो, चाहे वो एमएनसीज हो, कौन सी भी इंडस्ट्रीज ले लो, फिनेंस के लिए आपको एक पोजीशन है ही. विदाउट फिनेंस यू कांट डू एनीथिंग. तो जहां पर हमें स्कोप ज्यादा है वैसी चीज को हमें इख्तियार करना है. तो एक जो है फिनेंस, अगर हमने फिनेंस को इख्तियार कर लिया तो इसके लिए हमें क्या क्या स्किल्स चाहिए? हु आर अप्लीकेबल टू डू बीबीए इन फिनेंस? इट्स सिंपल थिंग. कौन जो है फिनेंस के लिए मुस्तहिक हैं, कौन फिनेंस के कोर्स कर सकते हैं? तो सिंपल थिंग यही है कि जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, वर्बल एंड रिटन स्किल अच्छी हो, और जिसके पास जो है एनालिटिकल स्किल अच्छी हो, तो ये आसानी के साथ जो है फिनेंस में जा सकते हैं. और दूसरी स्ट्रीम, फिनेंस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस किस तरीके का जॉब आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिनेंस में. अगर आपने बीबीए किया फिनेंस में और फिर एमबीए किया फिनेंस में, उसके बाद आप जो है आसानी के साथ फिनेंस मैनेजर बन सकते हैं, आसानी के साथ आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, एंड आसानी के साथ आप जो है फिनेंस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, फिनेंस पर्सनल एडवाइजर बन सकते हैं, एंड आप जो है आसानी के साथ टैक्स असिस्टेंस बन सकते हैं. तो इतने सारे जो फैसिलिटीज है, बेनिफिट्स हैं, स्कोप्स हैं, ये फिनेंस रिलेटेड है, ये फिनेंस रिलेटेड. तो अब चलो हम देखेंगे कि फिनेंस में इतनी सारी फैसिलिटीज हैं. तो इसी ही तरह मैनेजमेंट इज ओपन फॉर ऑल. जैसे कि मैंने बताया, हर एक को जो है इतना ही प्रेफरेंस है जितना फिनेंस का है. मैंने इसको ग्रेड वाइज नहीं किया कि फर्स्ट फिनेंस है, सेकंड मार्केटिंग है, थर्ड एचआर है, फोर्थ फॉरेन है. ऐसा मैंने जो है कोई सीक्वेंस नहीं बताई. एवरीथिंग इज बेस्ट when it is come possible, when it is come best based on our capability. if we have a capability, अगर हमारे पास जो है analytical capability है, तो हम आसानी के साथ फिनेंस को अप्रोच कर सकते हैं. लाइक ले लीजिए, अगर अब हमारे पास जो है लीडरशिप क्वालिटी है, तो चलो हम आसानी के साथ जो है मैनेज कर लेंगे. हमारे पास इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, लीडरशिप क्वालिटी है, पेशेंस है. लाइक दिस आर द स्किल्स, ओके, विच इज जिसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, आसान से दूसरी स्ट्रीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं. लाइक यू कैन चूज ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स, like you know, management lies under four things. One is material, one is money, and another is men, and another is machine. Four things. मैनेजमेंट का जो है ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ये फोर थिंग्स का है. men, money, machine, material. men, money, machine, material. So without four things you can't do anything. ये चार चीज का होना बहुत जरूरी है. अगर किसी के पास जो है मटेरियल्स है, मनी है, मशीन है, बट मेन नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग. ओके,
you can't even produce any single product. So these four things are interdependent, interrelated. तो ऐसा ही जैसे कि मैंने फिनांस का इंपॉर्टेंस बताया, इसी तरह जो है इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट एक है ह्यूमन। अगर आपके पास जो है क्वालिटी है, आपके पास जो है पैशन है, आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है, आपके पास मोटिवेशंस क्वालिटी मोटिवेशंस है, मोटिवेशन का एक जो स्किल है, आप आसानी के साथ मोटिवेट कर सकते हैं। लाइक आपके पास जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, बेस्ड ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू कैन मोल्ड योरसेल्फ। आप जो है आसानी से सिचुएशन के साथ अपने आप को बदल सकते हैं। तो ऐसे सलाहियत रखने वाले, ऐसे क्वालिटी रखने वाले आसानी के साथ चूज कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स को, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल अबाउट डीलिंग विथ ह्यूमन कैपिटल्स। ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल अबाउट डीलिंग विथ ह्यूमन बीइंग्स। सो ह्यूमन रिसोर्स कहने का चीज क्या है? आप जो है एक इंडस्ट्रीज के अंदर डील कर रहे हैं, किसे डील कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग्स को डील कर रहे हैं। क्यों? सबसे बड़ा टास्क ए ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन्स नेचर इज डिफर फ्रॉम अदर। एक एक का एक एक नेचर है। कोई जो है कूल पर्सन होगा, कोई टेंशन पर्सन होगा, कोई जो है हेल्थ में उसका हेल्थ इलनेस होगा, कोई जो है इफेक्टिव होगा, कोई अबनॉर्मल होगा। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपके पास सलाहियत है कि आप मैनेज कर सकते हैं ह्यूमंस को, तो डेफिनेटली आप जो है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रीम को सेलेक्ट करें। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रीम को सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है क्या क्या जॉब ऑफर्स मिलेगा, क्या क्या आप जो है आपका करियर प्रोफाइल क्या क्या बनेगा, आपका करियर ऑप्शंस क्या है, तो आप आसानी से इतनी बात समझ सकते हैं कि आप जो है एचआर मैनेजर बन सकते हैं, एचआर एग्जीक्यूटिव्स बन सकते हैं, एचआर जो है रिक्रूटर बन सकते हैं, एंड जो है रिक्रूटर कंसल्टेंट बन सकते हैं, एंड आसानी से पब्लिक रिलेशन मैनेजर बन सकते हैं। एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक ह्यूमन रिसोर्स के लिए ओनली इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज और एनी इंडस्ट्रीज आर नॉट लिमिटेड, नॉट बाउंडेड। तो आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स के लिए कोई चीज बाउंडेड नहीं है, आप यहाँ तक ही जाएंगे, इस तक ही जाएंगे। बट ह्यूमन रिसोर्स के लिए द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू, वेर एवर यू गो, in with whatever the field you can go, you may have the human resource. Even you can go for hospitals, like hospital industries. There are many multi speciality hospitals are there, where also you can get scope for the human resource to manage hospital employees, to control hospital employees. Is that be clear? तो क्या आपको समझ में आई? तो ह्यूमन रिसोर्स एक अच्छी स्ट्रीम है जिसकी वजह से आप अपना करियर ह्यूमन रिसोर्स के अंदर बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी करियर बन सकती है, जैसे कि एचआर एग्जीक्यूटिव्स, एचआर मैनेजर्स, एचआर कंसल्टेंट्स एंड रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट एक्सेट्रा। ये सब आपके जो है जॉब ऑप्शंस हैं। लाइक आप ले लीजिए अनदर ऑप्शंस है लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो, जो ये सोचता है, अपने आप को सोचता है कि आई एम गुड फॉर द कम्युनिकेशन, आई कैन मैनेज, जो एटलीस्ट जो मैनेजेबल कम्युनिकेशन रखता है, वही भी इस स्ट्रीम के लिए जो है काफ़ी ऑप्ट है। क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बात करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको बिजनेस जो है प्रमोट करना पड़ता है, तुम्हारे प्रोडक्ट्स के बारे में, तुम्हारे जो है मटेरियल्स के बारे में, और तुम्हारे इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको जो है प्रमोट करना पड़ता है। तो जिसके लिए आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत नेसेसिटी है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, एंड सेकेंड वन सेल्फ कॉन्फिडेंट, विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंट you never choose this particular subject, this particular specialization, this particular stream. Only if you have a good stuff, only if you have a good self confidence, then only you can go with this. अगर आपके पास जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, तभी आपको जो है इस फील्ड ऑप्ट होगा। क्यों सर? क्योंकि मार्केटिंग फील्ड में आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ता है। ये कब जाकर पॉसिबल होगा? अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, और साथ ही साथ आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, और आपको जानकारी हो करंट अफेयर्स के बारे में, आज का बिजनेस प्लान कैसा है और आज का बिजनेस सिनेरियो कैसा है, और आपको जो है
एबिलिटी हो कस्टमर्स को डील करने का, क्योंकि कस्टमर्स जो है डिफरेंट तरीके के हो गए। हाँ, हर एक का इंटेंशंस, हर एक का प्रेडिक्शंस अलग अलग रहेगा, तो यू कैन एबल टू मैनेज। अगर वो एबिलिटी आप में हो तो आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैनेजमेंट इज ओपन फॉर ऑल, देन व्हाई इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रीम्स। क्यों ये डिफरेंट स्ट्रीम्स में जो है डिवाइड किया गया? क्योंकि बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज वी कैन चूज। वी नो वेरी वेल दैट वेयर वी हैव टू परफॉर्म गुड। हम बेहतर अच्छी तरह जानते हैं कि हम कहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। हमें बेहतर जानते हैं कि हम कौन से काम को जो है अच्छी तरह इफेक्टिव मैनर में हम कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपने जो है बीबीए मार्केटिंग फील्ड में चूज किया तो आपको जो है डेफिनेटली गुड करियर ऑप्शन है। लाइक आप परचेस मैनेजर बन जाओगे, लाइक आप सेल्स मैनेजर बन जाओगे, लाइक आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स बन जाओगे, लाइक आप जो है एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव बनोगे, लाइक आपके पास जो है मार्केट रिसर्च एनालिस्ट कहने का एक ऑप्शन है। तो आप ऐसे जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है? जरूरी चीज जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट है एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल है एंड एबिलिटी टू टैकल द कस्टमर्स। कस्टमर्स के पास हमें जो है हमारे पास एबिलिटी है कि हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें, कस्टमर्स का नीड को फुलफिल कर सकें, तब जाकर ये फील्ड हम चूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, और नेक्स्ट फील्ड ले लीजिए जहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कोई इस जगह जाता ही नहीं एंड को और किसी को इसके बारे में पता ही नहीं, और मोस्टली जो है ये एक ऐसा फील्ड है जहां हमेशा हमेशा स्कोप रहता है। वो क्या है? लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक। हम क्यों बैकवर्ड हैं, क्यों हम पीछे हैं? वाई वी आर इन बैकवर्ड इन द कम्युनिटी? बिकॉज वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव बाउंडेड अवर सेल्फ। हमने क्या किया? हमारे सेल्फ को बाउंड कर दिया कि भाई हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ये हमसे नहीं हो सकता, वो हम नहीं कर सकते। तो ऐसा है। तो इसके लिए क्या हुआ? आज मैक्सिमम जो स्कोप्स, जो अपॉर्चुनिटीज, जो करियर ऑप्शंस लॉजिस्टिक्स में है, इसको कोई ऑप्ट ही नहीं करता, इसको कोई अडॉप्ट ही नहीं करता, इसकी चाहत भी कोई नहीं रखता, क्योंकि उनको जो है इसकी अवेयरनेस नहीं, इसकी असलियत पता नहीं। तो चलो आज हम कुछ देखते हैं बीबीए लॉजिस्टिक के बारे में। सो लॉजिस्टिक क्या है? इट्स ऑल अबाउट लाइक वेयर हाउसेस। जैसा वेयर हाउसेस है जहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल्स होती है, मटेरियल्स को मेंटेन करना पड़ता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं लॉजिस्टिक्स। दैट यू आर एक्सपोर्टिंग समथिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड you are providing goods from one place to another place, like for which we need a logistic. Logistic, it's one of the important branch of management as well as commerce. मैनेजमेंट का और कॉमर्स का इम्पोर्टेंट ब्रांच लॉजिस्टिक है, और बहुत सारों ने इस लॉजिस्टिक को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे करियर ऑप्शंस को खो बैठे। तो चलो इसके लिए क्या क्वालिटीज चाहिए? क्या क्वालिटीज चाहिए? सिंपल, आपके पास अगर टेक्निकल क्वालिटी होगा, कम्युनिकेशन क्वालिटी होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी, तो यू आर फिट फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। आप लॉजिस्टिक के लिए फिट हैं। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स हो, अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हो, तो आप आसानी के साथ इस फील्ड को चूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। लाइक you no need to go for harbors, you no need to go for any other places like cargo industries. In every organizations there is a separate department for logistic, that is what called logistic department. हर एक इंडस्ट्री में आपको जो है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट मौजूद है, जहां पर हमेशा वैकेंसी होती है, और इस वैकेंसी को बहुत सारे लोग फुलफिल ही नहीं करते। वजह क्या है? क्योंकि हम वी आर अनअवेयर अबाउट दिस। most of the students, those who are doing graduation, post graduation also, they also don't know, they also doesn't have any kind of awareness about this. So it has a good scope actually. So logistic के पास, आपके पास जो है बहुत सारे scopes हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारे अच्छे ओहदे पर पहुंच सकते हैं। like you can go for purchase manager, like you can go for operational manager, like you can go for production manager,
ये सब क्वालिटी, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो सारी चीज़ आपको लॉजिस्टिक में मिल जाएगी। और आपको जो है परचेस मैनेजर के लिए जो क्वालिटीज चाहिए वो सारी चीज़ आपको लॉजिस्टिक में मिल जाएगी। और अगर आपको जो है कस्टमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट ऐसा पोजीशन है, मैनेजर पोजीशन है कस्टमर सर्विस मैनेजर, अगर आपने लॉजिस्टिक किया होगा, अगर आपका फील्ड जो है अपना स्ट्रीम लॉजिस्टिक सेलेक्ट किया होगा, तो आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ अपना स्ट्रीम को, अपना स्कोप को जो है आप सेटिस्फाई कर सकते हैं लॉजिस्टिक के जोन में, लॉजिस्टिक के एरिया। तो हमने जो है बहुत सारी चीज़ों को देखा। अब चलिए और एक चीज़ देखते हैं, होटल मैनेजमेंट। आई एम सेइंग समथिंग बिफोर दिस, there is two industry as per my knowledge and as per my observation where there is no loss. There is two industries where there is no loss. दो इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर आपको जो है लॉस ही नहीं। आई थिंक एज पर माई ऑब्जर्वेशन कह रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स का मुताला किया और बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ा, जिसकी वजह से मैं इस बात को कहने की जरूरत करता हूँ कि हर इंडस्ट्रीज में लॉसेस है, हर इंडस्ट्रीज में अप्स एंड डाउन्स है, बट दो इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, लॉसेस होने के इम्कान बहुत कम है। उसमें पहली इंडस्ट्री ये है कि होटल इंडस्ट्री, एंड सेकेंड इंडस्ट्री हॉस्पिटल इंडस्ट्री। तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री एंड होटल इंडस्ट्री दोनों इंडस्ट्री ऐसे हैं जहां पर आप जितना इन्वेस्ट करोगे, जितना जो है आप जो है अपना जो है इन्वेस्टमेंट डालोगे, वहां से आप उतना रिटर्न्स आसानी के साथ ले सकते हैं। ये मेरी अपनी बात नहीं, बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसका जो है कंक्लूजन दिया है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, these two industries are well ground in and around the country. आज कंट्रीज के अंदर जो वेल ग्राउंड, अच्छा जो तरक्की याफ्ता जो इंडस्ट्रीज कहा जाता है वो है हॉस्पिटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सो while we are selecting our career, we have to think about it, where we can go, where we can go, in which position, in which stream, what we have to select to succeed in life, for a better career development, to build a better career. तो आप जो है ऐसी चीज़ों में भी जा सकते हैं, लाइक हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज, लाइक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज। दोनों इंडस्ट्री ऐसे हैं जहां पर आप आसानी से अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो सब मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो अगर आप जो है इन चीज़ को फॉलो करोगे, लाइक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज को, आप आसानी से जो है बहुत सारे पोजीशंस हैं, लाइक फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, like catering manager, floor manager, hotel coordinator, a guest relationship manager. So you can get like such type of positions. Okay, so in today's modern world we can see that there are many hotels are there. If you go anywhere, then you can see there are big shopping malls, there are big hotels, hotel industries. आपके पास बहुत सारे होटल इंडस्ट्रीज हैं। अगर आप जो है कभी सफर करके देखें तो आपको पता चलेगा कितने होटल इंडस्ट्रीज हैं। होटल इंडस्ट्रीज इतने हैं तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी होगी, वहाँ पर स्कोप कितना होगा। तो हम पहले इसके बारे में सोचते ही नहीं और हम इसके बारे में फिक्र ही नहीं करते, तो हमको इसके बारे में जो है पता ही नहीं चलता कि वहाँ पर भी जॉब ऑप्शंस हैं, वहाँ पर भी हमारे करियर ऑप्शंस हैं, वहाँ पर भी करियर ऑप्शंस हैं। तो आप जो है हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज भी चूज़ करते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज भी चूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद जो है बेहतरीन इंडस्ट्रीज जो है आपको चूज़ करने के लिए वो है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ईदर यू कैन सेलेक्ट लेदर इंडस्ट्री, ईदर यू कैन सेलेक्ट क्लॉथ इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, whatever the stream, whatever the industry you can select, like automobiles. Okay, wherever you can go and whatever the industry you can select, and you may have a separate department for the foreign trade. जो भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मोबाइल की इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री हो, चाहे वो लेदर इंडस्ट्री हो, चाहे वो क्लॉथ्स की इंडस्ट्री हो, चाहे या कौन सी भी इंडस्ट्री हो, जो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट्स करते हैं, वहाँ पर एक पोजीशन है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड
जिसको जो है हम आसानी से सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो फॉरेन ट्रेड में क्या क्या होनी चाहिए? अगर आपने जो है बीबीए सेलेक्ट किया, स्पेशलाइजेशन फॉरेन फॉरेन ट्रेड में, तो आपको चाहिए कि आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, बिकॉज यू हैव टू डील विद द कस्टम ऑफिसर्स एंड यू हैव टू डील विद द सेवरल ऑफिशियल पीपल्स। तो आपको जो है बहुत सारे ऑफिशियल से आपको जो है रब्ता करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है वो है कम्युनिकेशन स्किल। with the help of proper communication skills only you can select this stream. If you feel that I don't have, you don't have any communication skills, like you are lacking in communication skills, अगर आप आपके पास communication skills नहीं है, अगर आप communication में थोड़ा backward हैं, तो आप जो है इस फील्ड को सेलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको जो है इस फील्ड में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन अब्रॉड यू हैव टू बी कॉन्टैक्ट। तो आपको जो है कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। तो मगर इस फॉरेन ट्रेड में आपके लिए बहुत सारे करियर गोल्स भी हैं, करियर ऑप्शंस भी हैं। वो क्या है? तो पहला करियर ऑप्शन, आप तो जो है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर बन सकते हो। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर क्यों? इसमें स्कोप इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हो, इसके रिलेटिंग बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। लाइक व्हाइल यू आर sold out particular things, so you have to create अब जो है इनवॉइस क्रिएट करना होगा, पैकिंग लिस्ट क्रिएट करना होगा, और जो है आपको कस्टम्स में जाकर जो है शिपिंग बिल लेनी होगी, और जो है आपको जो है एयरवे बिल लेना होगा, और आपको जो है वो जो लेटर ऑफ क्रेडिट्स के जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा करना होगा, एंड पेमेंट्स के जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा करना होगा, एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो है इस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट कम्युनिकेशन स्किल we should not do anything. So those who feel that I have a good communication skill, then definitely they can go ahead for the foreign trade. अगर आप फॉरेन ट्रेड में जो है बीबीए करेंगे और बीबीए करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस में, तो आपको करियर ऑप्शन मिलेगा। आप आसानी के साथ बिजनेस मैनेजर बन सकते हो, एक्सपोर्ट मैनेजर बन सकते हो, एग्जीक्यूटिव मैनेजर बन सकते हो, even though you can become a finance manager, even though you can become a finance manager and you can become a business consultant। तो आप जो है बिजनेस कंसल्टेंसी के साथ और फिनेंस मैनेजर भी बन सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पर मिलेगी। तो मोहतरम दोस्तों, तो बहुत सारे स्कीम्स हैं जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा भी बीबीए के अंदर लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अगर आपके पास अच्छी कंप्यूटर स्किल्स है तो आप आराम से जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो। आपके पास अकाउंटिंग स्किल्स अच्छी है, आपका अकाउंटिंग बैकग्राउंड अच्छा है, तो आसानी से आप बैंकिंग ले सकते हो, एंड आप जो है आसानी के साथ जो है ट्रैवल्स एंड टूरिज्म मैनेजमेंट भी कर सकते हो। ये बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो हमने जो है पहले जाना ही नहीं। तो हम जब हम 12th कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट करने के बाद हमें जो है इन सारी चीज़ों पर ध्यान देनी होगी, और ध्यान देकर हम जो है चूज करेंगे कि विच फील्ड वी हैव टू सेलेक्ट, which field you have to select. Okay, one thing now we have discussed about the graduation में यहाँ में मैंने एक चीज भूल गया बोलने के लिए, वो क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम कब इसके लिए एलिजिबल हैं? वी हैव टू क्लियर 12th एग्जाम, either any stream, either you become you belongs to commerce, or you belongs to mathematics, or you belongs to science, whatever the streams, everything is applicable for BBA। अब जौन सी भी स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस के स्ट्रीम से हो, चाहे आप मैथ्स के स्ट्रीम से हो, और चाहे आप कॉमर्स के स्ट्रीम से हो, आप जो है एलिजिबल हैं बीबीए के लिए। और कितने परसेंट मार्क चाहिए? 55%। एंड वाज ए some universities and some colleges are there, they were given only 50%। 50% मार्क्स रहेगा तो आपको जो है अप्लीकेबल रहेगा। और बहुत सारे इन जनरल 55% होता है, तो 55% मार्क्स के साथ आप आसानी के साथ बीबीए कर सकते हैं। चलो, अब हमने बीबीए कर लिया किसी भी स्ट्रीम से, तो हमें क्या करना है? तो हमें बाकायदा पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी, क्योंकि टुडे इज ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। यू हैव टू compete your competitor once you have a good qualificational background।
If you have a good qualifications, then only you can compete your competitors. अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को compete करना होगा तो आपको पहले अपनी क्वालिफिकेशंस की बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है. अगर आपके पास गुड क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड रहेगा तो ही आप जो है अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट कर सकते हैं. जैसा कि मैंने शुरू में बताया इंटरव्यूज़ में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, मगर कितने सेलेक्ट हुआ बस एक. वो एक आदमी कौन था जिसके पास सारी स्किल्स थी. कम्युनिकेशन स्किल्स था, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थी, मैनेजिंग स्किल्स था, डिसीजन मेकिंग स्किल्स थी, बहुत सारे स्किल्स थे. तब जाकर वो एक आदमी मैनेजर पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुआ. तो आप ये मत सोचिए कि बैचलर्स इज एनफ फॉर द करियर डेवलपमेंट. डेफिनेटली नॉट. बैचलर्स इज एनफ फॉर करियर डेवलपमेंट. बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि चलो हमने 12th कर लिया, बस एक 3 साल और कुछ डिग्री कर लें और डिग्री करके बस हम जो है अपना करियर देखें. तो ऐसा जो है हमारा जो गुमान है वो बहुत कमज़ोर है. दैट मीन्स वी वर लैकिंग. इसी गुमान की वजह से हमने अपनी तरक्की से मुंह मोड़ लिया. तो अगर आपको एक अच्छी करियर बनानी है तो आपके पीछे एक अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड ज़रूरी है. अगर आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा तब जाकर आपकी अच्छी करियर बनेगी. क्योंकि आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू हैव टू फेस वेरियस पीपल्स. थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स यू हैव टू फेस. बहुत सारों को आप फेस करना पड़ेगा. हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स यू कैन फेस. इवन दो मोस्ट ऑफ द वॉक इन इंटरव्यूज दे वर रनिंग. बहुत सारे जो है वॉक इन इंटरव्यूज चलते हैं जहां एक ही दिन में 400-500 अफराद जो है एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, एक ही पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए आते हैं. तो हम इन सब को कैसे कॉम्पीट करेंगे? वंस वी हैव ए गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड. अच्छा, गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड का फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका स्किल इंप्रूव होगा. आपका सब्जेक्ट स्किल हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो, आपका सॉफ्ट स्किल्स हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हो, ये सारा इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड. अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशनल बैकग्राउंड रहेगा तो आप प्रॉपर अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आप जो है क्या नहीं कर सकते. यहाँ पर जो है राइवल फर्म्स हो या आपके कॉम्पिटिटर्स हो कॉम्पीट नहीं कर सकते. तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम एक बात को अच्छी तरह जाननी चाहिए कि जब हमने ग्रेजुएशन ख़त्म कर लिया, ख़त्म करने के बाद जब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गए तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो है हमें जो है जहन में रखनी चाहिए. अगर आप BBA के बाद MBA कोर्स करना चाहते हो तो MBA कोर्स करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि लोग जो है PG डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए नहीं करते कि बिकॉज ऑफ फिनेंस. हमारे पास फिनेंशियल बैकग्राउंड नहीं, हमारे पास प्रॉपर फिनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, हमारे पास हैसियत नहीं है. हम जो है इतने खर्च करके हम MBA नहीं कर सकते, इतने खर्च करके हम जो है दूसरी PG कोर्सेस नहीं कर सकते. ये जो है एक कॉमन पीपल्स का कॉमन थॉट होता है. बट एजुकेशन के लिए फिनेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. देयर इज ए वेरियस पूल वी हैव. बहुत सारे वेस हैं हमारे लिए जिसकी वजह से हम आसानी के साथ हमारे एजुकेशन को फुलफिल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. लाइक आप ले लो, MBA करना है तो MBA से पहले बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, इवन दो NTA हो और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, ये जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ PG. पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस के लिए जो है बहुत सारे कोर्सेस करते हैं. लाइक बहुत सारे कोर्सेस हैं लाइक CAT, MAT, GMAT, ZAT and TANSET, MEHSET. There are so many entrance exams are there. With the help of entrance exam you can get admission in a best college. So आप जो है इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के ज़रिए से, अपने स्किल्स के ज़रिए से
अपने कैपेबिलिटी के ज़रिए से आप आसानी से एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर सकते हैं और आसानी के साथ आप अपना करियर और अपना पीजी कोर्स बड़ी अच्छी कॉलेज से आप एडमिशन ले सकते हैं। लाइक आप ले लो, मैं एक दो एग्जांपल्स बताता हूँ। लाइक पहले मैं आपको सेंट्रल वाइज बताता हूँ। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है जिसके नाम है सी मैट, जिसका नाम है सी मैट, कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट जो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराता है साल में एक मरतबा या दो मरतबा। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छी कॉलेजेस में अपने आप को एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आपने सी मैट में जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखा और एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपने जो है अच्छी मार्कें हासिल की और टोटल जो है 100 क्वेश्चंस आता है, उसमें 25 क्वेश्चंस रिलेटिंग टू डेटा इंटरप्रिटेशन, 25 क्वेश्चंस रिलेटिंग टू लॉजिकल रीजनिंग, 25 क्वेश्चंस रिलेटिंग टू कॉम्प्रहेंसिव एंड 25 क्वेश्चंस रिलेटिंग टू जनरल अवेयरनेस। सो फॉर 100 क्वेश्चंस जो है ये टोटल सी मैट, यानी सी मैट जो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कंडक्ट करती है, ये जो है ऑनलाइन टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट में आप आसानी के साथ इसको क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। सिर्फ 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस वो भी सारे जो है जनरल ही है, लाइक डेटा इंटरप्रिटेशन हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, लाइक कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो, लाइक जनरल अवेयरनेस हो। ये 100 क्वेश्चंस के ज़रिए अगर आप जो है इस टेस्ट को क्लियर किया तो आसानी से अच्छी कॉलेजेस में आपको सीट मिल सकती है और फीस की भी कंसेक्शंस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। और बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, लाइक आप ले लीजिए कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये आईएएम जो जितने भी आईएएम हैं, सारी आईएएम्स जो है इसको कंडक्ट करता है फॉर द एडमिशन ऑफ एमबीए एंड एमसीए। तो ये भी जो है अराउंड एक 100 क्वेश्चंस की क्वेश्चन पेपर है, ऑनलाइन टेस्ट है जिसके अंदर नेगेटिव मार्क्स भी है। अगर आपने नेगेटिव मार्क्स भी लिया होगा तो भी वो आप कंसिडर करेंगे बिकॉज ऑफ आपने जो है किया, उसमें एडमिशन लिया। और तीसरा चीज़ है यमी हेडसेट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, लाइक यमी हेडसेट फॉर द पोस्ट ऑफ एमबीए एंड एमसीए। अगर आप एमबीए हेडसेट में, और सबसे बड़ी बेनिफिट यह है कि दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक सी मैट, लाइक कैट, लाइक टैन सेट्स, ये सारे एग्जाम्स में आपको जो है क्या मिलेगा, नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चंस को गलत आंसर कर दिया तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क, नेगेटिव मार्क मिलेगा। मगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक ब्यूटी ऐसी है कि जिसने जो है एमबीए हेडसेट के ज़रिए से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर जो है ना तो नेगेटिव मार्क्स है ना ही नेगेटिव मार्क्स है, और आसानी के साथ जो है काउंसलिंग भी मिल जाती है और आसानी के साथ आप जो है अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। फॉर get admission to get admission in MBA degrees, PG level, then you have to clear all those things. Like बहुत सारे students, those who are belongs to Tamil Nadu, they can go for TANSET के ज़रिए से तमिलनाडु के अंदर जो तलबा हैं वो जो है TANSET के ज़रिए से अपना इम्तिहान दे सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आपका जो है आंसर यानी आपका रिजल्ट नेगेटिव भी होगा तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा और बेस्ट कॉलेजेस में आपके एडमिशन हो सकती है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं हम एडमिशन लेने के लिए पीजी में, और पीजी में भी वही सारी बातें हैं जो मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया, लाइक यू कैन गो फॉर एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन एचआर, एमबीए इन आईबी इंटरनेशनल, एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट बिजनेस एनालिटिक्स, एंड एमबीए इन सप्लाई चेन, एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, एमबीए इन हेल्थ केयर। सो यहाँ पर भी वही सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने पहले बीबीए में बताया। तो ये रहा कैरियर्स आपका जो है मेन स्ट्रीम में। तो आपने बीबीए किया, बीबीए के बाद एमबीए किया। आफ्टर एमबीए डेफिनेटली यू हैव ए वाइडर स्कोप, वाइडर अपॉर्चुनिटी फॉर योर बेटर करियर बिल्डिंग। To build your better career, MBA is must. Not only about MBA, PG is must. If you have a PG, if you have a good qualification background, then definitely you have a wider scope
definitely you have a good opportunity for your career development as well as for your career building. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे जो है पता लगा लो कि हमें जो है कौन सी स्ट्रीम कर ली है। लाइक आपने बीबीए में किया फिनेंस, तो आपको यहाँ डेफिनेटली फिनेंस में ही जाना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो इंटरनेशनल बिजनेस भी जा सकते हो, मगर स्ट्रीम जो है सेम होनी चाहिए, तब जाकर आपको जो है फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो इसके लिए आप एमबीए में जो सा भी स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो ले सकते हैं। एंड वन थिंग आई लाइक टू क्लियर हियर, एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ बीबीए के अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं पाई जाती। मैंने यहाँ पे स्लाइड में स्पेशलाइजेशन मेंशन किया, मगर इन कॉमन बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कॉलेजेस हैं और वहाँ भी बीबीए मौजूद हैं, मगर बीबीए के अंदर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं पाई जाती। वहाँ सिर्फ बीबीए जो है जनरल होता है। जिसने बीबीए कोर्स जनरल में किया वो आगे चलकर जो है अपना करियर पीजी में सेलेक्ट करें। पीजी में जो है यहाँ पर अपना करियर बनाए कि आप कौन सी स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हो, लाइक फिनेंस में हो या मार्केटिंग में हो, एचआर में हो। मैंने आपको यहाँ ये सारी चीज़ को जो है डिस्कस करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जो है डिसीजन लेना पड़ेगा। दोस्त हु आर परस्यूइंग बीबीए जनरल, बीबीए जनरल में करने वालों के लिए ये ऑप्शंस है। अगर बीबीए किया है स्पेशलाइजेशन में, लाइक फिनेंस में ही किया, तो यहाँ कोई बात ही नहीं आती, एमबीए वो फिनेंस में ही करेगा। अगर वो चाहे तो दूसरे स्ट्रीम को बदल सकता है, मगर बेटर कौन सा है, बेस्ट कौन सी है, तो बेस्ट जो है जनरल वाली, जैसा आपने जो है ग्रेजुएशंस में जो किया वही आपको पीजी में लेना बेहतर रहेगा। तो चलो, अब बहुत सारों का इंटेंशंस सर्विस मोटिव होता है। बहुत सारे जो है सर्विस माइंडेड रहते हैं कि भाई वी आर बिलोंग्स टू गुड फैमिली, वी हैव ए गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एंड इन समटाइम्स स्टूडेंट्स थिंक करते हैं कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, वी हैव टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। बहुत सारों की तमन्ना होती है कि चलो भाई हम जो है बीबीए भी किया, बीबीए में स्पेशल एमबीए में स्पेशलाइजेशन भी किया, और अभी चलकर मुझे क्या तमन्ना है कि हम कौम के लिए कुछ ऐसा काम करें जिसकी वजह से हम भी तरक्की हो, हमारा कौम भी तरक्की हो, हम भी तरक्की हो, हमारा कम्युनिटी भी तरक्की हो। ऐसे अफराद के लिए भी हमारे पास जो है ऑप्शन है। वो क्या है? जो सर्विस करना चाहते हैं, कौम की खिदमत करना चाहते हैं, जो है कौम के लिए मर मिटना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे लिए ऑप्शंस हैं। लाइक यू कैन गो सम कोर्सेस फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग प्रोफेशन। क्योंकि बहुत सारों की इंटेंशंस होती है कि वी हैव टू गो फॉर द सर्विस। बाज़ लोगों की ऐसी ही एक ऑब्जेक्टिव होती है कि वी बॉर्न फॉर द सर्विस, वी विल डाई फॉर द सर्विस। सो हमें जो है सर्विस, ज़िंदगी में जब तक रहेंगे हम सर्विस करेंगे, और जब हम जाएंगे तो भी सर्विस करके जाएंगे। तो बहुत सारों का इंटेंशन ऐसा होता है। तो जो सर्विस माइंडेड हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है कि वो आफ्टर एमबीए के बाद वो टीचिंग प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसी बात नहीं, इस फील्ड के अंदर आपको दो चीज़ मिलेगी। एक, आप जो है यहाँ पर सर्विस भी कर सकते हैं, और दूसरा आप यहाँ पर रेवेन्यू भी कमा सकते हैं, इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, इनकम भी आसानी के साथ कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको खिदमत का सवाब भी मिलेगा, और आपको यहाँ पर आपकी नौकरी जो आपने की, आपकी मेहनत जो आपने की, आपकी मजदूरी भी मिलेगी। तो एक टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसी प्रोफेशन है जहाँ पर आपको दोनों चीज़ है। एक आपको जो है खिदमत का सवाब है, और दूसरे जो है आपको जो खिदमत आपने की आपको उसका बदला भी मिलेगा। लाइक दोस्त हु वांट्स टू गो विथ टीचिंग प्रोफेशन, जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं वो पीजी के बाद आसानी के साथ एमफिल करें। एमफिल पार्ट टाइम में अगर आपको एमफिल करना हो तो 2 इयर्स का कोर्स लगता है। अगर आज के ज़माने में यूजीसी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में एमफिल को रिवोक कर दिया, और डायरेक्ट स्टूडेंट्स कैन परस्यू पीएचडी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी। पीजी कंप्लीशन के बाद आसानी के साथ ये पीएचडी कर सकता है स्टूडेंट्स। सो पीएचडी इज ए डॉक्टरेट इन फिलॉसफी एंड एमफिल इज ए मास्टर ऑफ फिलॉसफी। मास्टर ऑफ फिलॉसफी 2 साल के हैं। अगर आपका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड बढ़ाना चाहते हो तो आप जो है मास्टर ऑफ फिलॉसफी के ज़रिए से बढ़ा सकते हो। और आप जो है
पीएचडी करना चाहते हो तो पीएचडी जो है पार्ट टाइम में 3 ईयर से आफ्टर एमफिल, एंड पीजी के साथ आप जो है पीएचडी पार्ट टाइम कर सकते हैं 4 ईयर्स के साथ। ओके, पीएचडी अगर पीजी के बाद फुल टाइम में करना होगा तो सिर्फ 3 ईयर्स में ख़त्म हो जाएगा, और पीएचडी अगर पार्ट टाइम में करना चाहते हैं आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तो इसको लगेगा 4 साल। एंड नेक्स्ट, तो यहाँ एक नेक्स्ट पार्ट है जो मैंने मेंशन किया, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इट्स लाइक ए जैकपॉट, इट्स लाइक ए जैकपॉट, दोस हु आर डिजर्व्स, जिसके पास जो है अच्छी स्किल्स है, अच्छी क्वालिटी है, सब्जेक्ट बैकग्राउंड है, तो उसके लिए जो है नेट एंड सेट ये एक जो है जैकपॉट है, लाइक इट्स लाइक ए गिफ्ट। जिसके पास अच्छी एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड अच्छी सब्जेक्ट बैकग्राउंड रहेगी, वो आसानी के साथ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में 2 चीज़ है। ये क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करने के बाद आप किसी भी कॉलेजेस हो और किसी भी यूनिवर्सिटीज़ हो और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, यू कैन गेट रिक्रूटेड। आराम से आप जो है रिक्रूट हो सकते हैं, चाहे किसी भी कॉलेज हो, किसी भी यूनिवर्सिटी हो और डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। और आपको नेट ही काफ़ी है टू बी ए असिस्टेंट प्रोफेसर। एक कॉलेज में एक लेक्चरर पोस्ट के लिए, एक प्रोफेसर पोस्ट के लिए आपके लिए नेट बहुत काफ़ी है। अगर आप पीएचडी भी करना चाहते हैं तो नेट में एक ऑप्शन है, व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर द नेट एग्जामिनेशन यू हैव एन ऑप्शन लाइक JRF नेट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। सो जूनियर रिसर्च फेलोशिप विथ नेट, आप अगर जो है जूनियर रिसर्च JRF नेट पास करेंगे तो आपको आसानी से किसी भी कॉलेजेस में आप जो है पीएचडी का एडमिशन ले सकते हैं, और टिल कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी, टिल कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स यू कैन गेट स्टाइफंड फ्रॉम गवर्नमेंट। नेट जो है JRF के साथ आप क्लियर किया और आपने एडमिशन लिया किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए, और आपका पीएचडी 3 ईयर्स का टेन्योर है, तो 3 ईयर्स तक आपको स्टाइफंड मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्टाइफंड मिलेगा। सो बहुत सारे हमारे मुस्लिम कैंडिडेट्स एंड बहुत सारे जो है हमारे तलबा ये इस बैकग्राउंड से बहुत दूर हैं कि हमें पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, कौन सी स्कॉलरशिप्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड कौन सा स्कॉलरशिप जो है हमारे करियर के लिए बहुत यूजफुल है। लाइक आप JRF क्लियर करें तो आसानी के साथ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो भाई हमें पीजी करने के लिए पैसा नहीं, हम क्या करें पीएचडी के लिए। उनके लिए आसान तरीका है कि वो नेट विथ JRF क्लियर करें, और क्लियर करने के बाद देखिए कि आपको जहां तक आपकी कंप्लीशन स्टेज ना होगी तब तक आपको स्टाइफंड मिलता रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो आदमी टीचिंग प्रोफेशन के लिए जाना चाहता हो उसके लिए जो है नेट है अक्रॉस दी कंट्री। आप जो है नेट क्लियर करके कहीं भी जाकर आप काम कर सकते हैं, कहीं भी जाकर आप पोस्टिंग ले सकते हैं। लाइक आप मुंबई में हो, अगर आप पोस्टिंग लेना चाहते हो तमिलनाडु में, तो आराम से नेट क्वालिफिकेशन के साथ ले सकते हैं आसानी के साथ। एंड देखो बहुत सारे लोग जो है केरला से हैं और दे आर अक्रॉस द कंट्री, मोस्ट ऑफ द केरला पीपल्स दे आर रिक्रूटेड अक्रॉस द कंट्री। बहुत सारे लोग जो है अक्रॉस द कंट्री में रिक्रूट हैं, नॉट ओनली in our country but also in abroad. If you have a good qualification background then you have a such scope like this. Okay, next, सेट भी एक तरीके का जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसकी वजह से हम जो है सेट एग्जाम्स में पास करके लोकल यानी रीजनल एरिया में जहाँ कॉलेजेस है वहाँ पर आप आसानी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट हासिल कर सकते हैं। आसानी के साथ आपको जो है अच्छी सैलरी मिल जाएगी, बेसिक 56-57,000 लाइक दैट। ओके, एंड नाउ बहुत सारों को ख्वाहिश होती, तमन्ना होती है कि वो स्कूल्स में लाइक बिजनेस स्कूल्स में वर्क करें। लाइक बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं जहां मैनेजमेंट के लिए वैकेंसीज हैं टीचिंग पोस्ट में। उसको चाहिए कि बीएड करें अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। 2 ईयर्स का कोर्स होता है बीएड ख़त्म करने के बाद आप आसानी से जो है उस वैकेंसी में रिक्रूट हो सकते हैं जो गवर्नमेंट की दी हुई है। बहुत सारे स्कूल्स हैं, जैसे कि यहाँ तमिलनाडु में ले लो या महाराष्ट्र में ले लो, जहाँ भी ले लो, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ स्टिल देयर इज़ ए वैकेंसी फॉर मैनेजमेंट स्टाफ्स। मैनेजमेंट के लिए जो है मैनेजमेंट स्ट्रीम्स के जो स्टाफ्स हैं उनके लिए जो है अभी बहुत सारी वैकेंसीज बाकी है। एंड चाहे आप एमएड भी कर सकते हैं,
एमएड भी कर सकते हैं। एमएड के ज़रिए से आपको जो है आसानी के साथ प्रमोशन मिल सकता है, लाइक आप आसानी के साथ हेड मास्टर बन सकते हैं, या औरत हो तो हेड मिस्ट्रेस बन सकती है। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस जो है टीचिंग फील्ड में है। तो मैंने जैसा बताया टीचिंग फील्ड्स में दो बेनिफिट हैं, एक आप जो है खिदमत खल्क भी कर सकते हैं, और दूसरा आप जो है अच्छी तनख्वाह भी ले सकते हैं। तो ये जो है एक अच्छी फील्ड है कौम की खिदमत के लिए। एंड नाउ अपार्ट फ्रॉम all those things which we have discussed earlier, now we are moving to the another thing which is also important. बहुत सारे लोगों की तमन्ना ये होती है कि शुरू में इन्होंने बीकॉम शुरू किया और अचानक से इनको तमन्ना आ गई कि मैं इंटरनल ऑडिटर बनूं, या मैं एक्सटर्नल ऑडिटर बनूं, या मैं टैक्स कंसल्टेंट बनूं। तो ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी कोर्स मिल जाए जिसकी वजह से मैं बीबीए को भी सेटिस्फाई कर सकूं, और साथ ही साथ दूसरे कोर्सेज के ज़रिए से मेरा जो है तमन्ना है उसे भी पूरा कर सकूं। इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, लाइक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन you can go for MCOM. We have different streams in MCOM, like MCOM General, MCOM in Accounts, MCOM in Finance, MCOM in Banking, MCOM in Computer Application, MCOM in International Business. We are having a lot of streams. बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, लाइक तुम्हें जो है आराम से जो है आप MCOM के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हैं एंड नेक्स्ट ले लो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसको जो है टीचिंग फील्ड की जाने की तमन्ना है, बट मैनेजमेंट के अलावा किसी और में जाना चाहते हैं तो ये भी जा सकते हैं। लाइक मराठी पढ़ ली, तमिल पढ़ लिया, हिंदी पढ़ ली, एमए हिंदी कर लिया, एमए इंग्लिश कर लिया, एमए उर्दू कर लिया। तो इसके ज़रिए से आप टीचिंग फील्ड भी जा सकते हो। और एमए इकोनॉमिक्स है, ये सब पोस्ट ग्रेजुएशन से 2 इयर्स का MSW है। ये बहुत सारे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हैं जिसकी वजह से आप जो है अपना एक्स्ट्रा करियर भी बना सकते हो। एंड समटाइम्स बहुत सारे प्रोफेसर्स भी ऐसे हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे हैं जिन्होंने जो है पीजी भी किया हुआ है एंड साथ में MCOM भी किया हुआ है। कभी यहाँ पे गेस्ट लेक्चर जाते हैं, कभी अपनी कॉलेज में काम करते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए जो है ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं। लाइक बहुत सारों को तमन्ना होती है कि वो जो है ऑडिटिंग फील्ड में करें, लाइक इंटरनल ऑडिटर, लाइक अकाउंटेंट, लाइक टैक्स कंसल्टेंट। इनके लिए बेहतर ऑप्शन है कि वो आफ्टर बीबीए के बाद MCOM सेलेक्ट करें। एंड समटाइम्स सम स्टूडेंट्स में फेस डिफिकल्टीज फॉर क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफिकल्टी फेस करते हैं। उनके लिए भी ये ऑप्शन बहुत अच्छी है कि वो MCOM भी कर सकते हैं, MA में बहुत सारे लैंग्वेजेस में MA कर सकते हैं, एंड MA इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, एंड आसानी से MSW कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो है अपना करियर को इस फील्ड में बदला सकते हैं। यानी इंटरडिसिप्लिनरी में आप जो है आसानी के साथ अपना करियर बना सकते हैं। एंड MCA के जरिए, लाइक जैसा कि मैंने बताया एंट्रेंस एग्जाम है कैट CMAT, इसके जरिए आप जो है आसानी के साथ MCA में भी अपना जो है दाखिला करा सकते हैं, एडमिशन। एंड नाउ it is very important, most of the students thinks that we are not capable, we are not eligible for this particular position. हिंदुस्तान के अंदर 3 पर्सनल बॉडीज ऐसी है जिसके अंदर हमेशा स्कोप रहती है, और हमेशा आप आसानी के साथ इस पर्टिकुलर 3 थिंग्स यानी 3 पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स हैं, इसको आसानी से पास कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा तब ही जाकर आप इसको कंप्लीट कर सकोगे। विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंट you never become a CA or never become a ICWA or CS. If you want to do something, you have to work hard. If you want to do something, then must you have to build your self confidence, then only you can do. Otherwise you can't do anything without self confidence. तो आज एक दुनिया के अंदर बहुत सारे एक बात चल पड़ी कि देखो CA वो बहुत बड़ा कोर्स है, इसे हम कर ही नहीं सकते, इसके लिए हम एलिजिबल ही नहीं। हमने पढ़ा कहीं कोई एक कॉलेज में पढ़ा, यहाँ जाकर हम कैसे जाकर CA कंप्लीट करेंगे? ऐसा कोई बात नहीं। हमारे सामने बहुत सारे न्यूज़ेस हैं, लाइक एक ऑटो ड्राइवर की लड़की आसानी के साथ CA पास कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसके लिए बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंट। अगर अपने पास जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, हम जो है वी आर स्टिक विद आवर टारगेट, हमें अपने टारगेट के साथ लगे होंगे, तो डेफिनेटली वी विल बिकम। आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है अचीव कर सकते हैं। तो चलो, मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर 3 पर्सनल बॉडीज हैं, लाइक ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया,
ICMAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया, ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप ऑफ इंडिया। सो ये 3 पोजीशंस ऐसे हैं, अगर आपने इन तीनों कोर्सों में किसी भी कोर्स को कर लिया तो समझो आपका फ्यूचर ब्राइट, आपका फ्यूचर ब्राइट। You can't, nobody can beat you if you crack any one of this particular course। इन तीनों कोर्स में आपने अगर किसी एक कोर्स को क्रैक कर दिया, आपने किसी एक कोर्स को पा लिया, तो समझो कि कोई आपको बीट नहीं कर सकता। यू आर द किंग ऑफ योर ओन एम्पायर, आपकी जो है, आप ही जो है किंग रहोगे। तो इसके लिए बेसिक चीज क्या है, तो आप चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरीशिप हो, ICWA हो, इन तीनों कोर्सेज के लिए 12th के साथ आपको एडमिशन लिया जा सकता है। बेहतर क्या होगा, ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लेना बेहतर होगा, ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लेना बेहतर होगा। यू आर एलिजिबल आफ्टर 12th इटसेल्फ। आपने अगर 12th कंप्लीट किया, अगर आप चाहते हो कि CA बनूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और कंपनी सेक्रेटरीशिप बनूं, और आप ICWA बनना चाहते हो, तो आप 12th इटसेल्फ यू आर एलिजिबल। यहाँ तक ICWA के लिए आपको जो है आसानी के साथ 10th में ही आप रजिस्टर कर सकते हैं, 10th में रजिस्टर कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th यू कैन राइट योर फाउंडेशन एग्जाम फॉर ICWA। तो बहुत सारे स्कीम्स यहाँ पर हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट बेटर ऑप्शन कौन सा होगा जो आपको आपके बेहतरी के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, वो होगा आफ्टर ग्रेजुएशन। क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन में ये तीनों कोर्स में 3 स्ट्रीम है, लाइक फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। फाउंडेशन के लिए 12th एजुकेशन इज एनफ, इंटरमीडिएट के लिए एनी ग्रेजुएशन फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ कॉमर्स और BBA, एंड फाइनल के लिए आप यू हैव टू क्लियर योर इंटरमीडिएट। सो आपको जो है, और एक मरतबा आपको बताता हूँ कि इसके लिए तीन लेवल्स हैं। पहला लेवल क्या है, बेसिक है, यानी फाउंडेशन है। फाउंडेशन में दाखिला के लिए 12th इज एनफ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th you can get registered for your foundation courses for both in 3, like you can go for chartered accountant or company secretaryship like ICWA. Even though in ICWA you can register in your after completion of your 10th standard itself, 10th के बाद ही आप आसानी के साथ ICWA रजिस्टर कर सकते हैं। मगर बेहतर कौन सा होगा, बेहतर वही होगा जो आपके ग्रेजुएशन के बाद किया हो। क्यों? क्योंकि while you are studying your graduation, then you are getting maximum basic skills, whatever the basic skills required for the professional courses such as chartered accountant, company secretary and ICWA. All the basic skills you can get from your college studies. आप जो है जब BBA पढ़ोगे तो BBA में आपको इसके बैकग्राउंड के जो जितने बेसिक स्टडीज है सब आपको मिल जाएगा। लाइक आप CA हो, कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप, कंपनी सेक्रेटरीशिप हो और ICWA हो, यहाँ पर आपको आएगा कास्ट पेपर, अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग पेपर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर, लाइक फिनेंशियल मैनेजमेंट पेपर, फिनेंशियल अकाउंटिंग पेपर, लाइक इंडस्ट्रियल लॉ, लाइक लेबर लॉ, लाइक कंपनी लॉ। ऐसा बहुत सारे पेपर्स हैं जो इन प्रोफेशनल कोर्स के इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं। अगर आपने ग्रेजुएशंस की तो ग्रेजुएशंस में तो आपको मैक्सिमम बेसिक्स जो नॉलेज है इसकी तो आपको हासिल हो जाएगी, तो आप आसानी के साथ डायरेक्टली इंटरमीडिएट कोर्स में आप जो है एडमिशन करा सकते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो या ICWA हो, इन दोनों कोर्सेज के लिए डायरेक्टली आप जो है एडमिशन करा सकते हैं। लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर, company secretary also has the same eligibility criteria, but now it has been changed. So company secretary के लिए पहले ऐसे ही क्राइटेरिया थी, जब कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो उसके लिए जो है फाउंडेशन एग्जाम्शन है एंड डायरेक्ट वो जो है इंटरमीडिएट जा सकता है। बट अभी इसका रूल थोड़ा चेंज हो गया आफ्टर वो जो कंपनीज एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ 2013 के बाद, इसमें थोड़ा जो है बदलाव आ गई।
तो उसमें जो है अब कंपनी सेक्रेटरीशिप में अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो आपको एंट्रेंस टेस्ट लिखना होगा, CSEET, CSEET, कंपनी सेक्रेटरीशिप एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो आपको ये एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा, तब जाकर आपको सेकेंड पोजीशन में यानी एग्जीक्यूटिव में आपको जो है दाखिला मिलेगा। तो यहाँ पर भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, और ये करियर ऑप्शंस जो है बहुत सारे ऑप्शंस अब तक मैंने बताया, इसके अंदर उतनी सर्टेनिटी नहीं जितनी सर्टेनिटी इसमें है, यानी जितने कंफर्म करियर अचीवमेंट्स जो है, जो कंफर्म करियर डेवलपमेंट है, वो जो है जितना इस प्रोफेशनल कोर्सेज में है, जितना इतना जो है किसी और में नहीं। और जिसने भी CA कंप्लीट किया हो, कंपनी सेक्रेटरीशिप कंप्लीट किया हो, ICWA कंप्लीट किया हो, दे ऑल आर इन ए गुड पोजीशन। सो इवन वी हैव टू मोटिवेट अवर सेल्फ, वी हैव टू बिल्ड अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, क्या है कि हम अपने आप को, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, अपने आप को हम सेल्फ मोटिवेट कराना है। बस यही दोनों चीजें इसके लिए काफी है। अगर आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट बन जाओगे, अगर अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप आसानी के साथ इसको क्रैक कर पाओगे। अगर आपने इसको क्रैक कर दिया तो सोचो कि यू आर द किंग ऑफ योर ओन एम्पायर। तो आप जो है, आप ही अपना जो है क्या, आप ही बादशाह हैं, आप ही किंग हैं। तो इसके लिए जो है हमें हर एक को इसकी तमन्ना होनी चाहिए कि हम वी विल बिकम, आई बिकम ए CA, आई बिकम ए ICWA, आई बिकम ए CS। तो ऐसी स्पिरिट हमें होनी चाहिए, ऐसी क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, और ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंट हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम इसको अचीव कर पाएंगे। हाँ, नेक्स्ट मैंने बताया कि बहुत सारों का फिनेंशियल बैकग्राउंड पुअर होता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टडीज़ को कर नहीं पाते। तो फिनेंस इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए फिनेंस इट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जिनकी वजह से हम अपना एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं, लाइक डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए। जैसे सालाना आपको 10 या 20 क्लास आ जाएगी, मैक्सिमम जो है 10 क्लास होता है, सालाना 10 क्लास होती है। तो आप जो है अपना ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैंने मेंशन किया हो, लाइक इग्नो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, CDAAMU, सेंटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लाइक CDOE, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी, like IDEUNYM, Madras University. Most of the universities, they have their own distance education platform by which they are service for the needy students, those who doesn't have a good financial background. जिन लोगों के पास जो प्रॉपर फिनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, वो अपने तालीम को आगे बढ़ा सकते हैं। वो मायूस होने की कोई फिक्र नहीं, वो आसानी के साथ जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो या और कोई दूसरा और सर्टिफिकेट कोर्सेस करना चाहते हो, लाइक डिप्लोमा कोर्सेस करना चाहते हो, PGDCA हो, PGDCM हो, कोई भी आपको जो है PG डिप्लोमा करना चाहते हो, लाइक BLIS, लाइक MLIS, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेस हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। आप जो है एक्स्ट्रा जिस जगह पर आपको जो है फिनेंशियल बैकवर्ड फील होता हो, जब आप फील करते हो कि मेरी स्टडीज़ इतने से ख़त्म हो गई, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो ऐसे हाल में आप इस प्लेटफॉर्म को चूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्टडीज़ फुलफिल हो और आप अपना एक अच्छा बेहतर करियर बनाए और अच्छी करियर में आप जो है प्लेस हो। नेक्स्ट, बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ स्किल्स नेसेसरी है। जैसे कि मैंने बताया कि BBA के लिए इम्पोर्टेंट स्किल्स जो बहुत ज़रूरत है, चाहे आप BBA में एडमिशन लेना हो, MBA में एडमिशन लेना हो, कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो इसके लिए हम जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे कि हम लीव्स में हैं, जैसे आफ्टर 12th कंप्लीशन के बाद हमें जो है छुट्टी में है, 2-3 महीना छुट्टी, वैसा भी अब जो है पैंडमिक की सिचुएशन है, इसमें जो है हम हमेशा जो है घर में रहते हैं, घर रहकर जो है बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं। जैसे कि आपने ये सेमिनार भी घर बैठकर सुन रहे हो, माशाल्लाह। तो ऐसा ही जो है बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं जो हम घर बैठे भी सीख सकते हैं, लाइक बिफोर वी आर एंटरिंग इनटू द कॉलेज स्टडीज़ or before you are entering into the money land, since you are in the mark land and now you are moving to the money land, आपने जो है अभी स्टडीज़ में हो,
आपके बाद अब जो है आगे बढ़ना है, यानी आप जो है कमाने के लिए जो है इनकम अर्न करने के लिए, तो इसके लिए जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक यू हैव टू डेवलप एंड यू हैव टू इंक्रीज योर करिकुलर स्किल्स, लाइक दिस आर द एक्स्ट्रा स्किल्स, सो यू मस्ट हैव। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखने को मिलेंगे जिसको जो है लेटर ड्राफ्ट करने नहीं आता होगा, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिसको जो है एक्सेल्स ऑपरेट करने नहीं आती, बहुत सारे ऐसे हैं जिसको पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन नहीं करना आती। सिंस वी आर बिलोंग्स टू द मैनेजमेंट स्ट्रीम, वी मस्ट नो हाउ टू प्रेजेंट। जैसा कि हमने जो है मैनेजमेंट स्ट्रीम को चूज किया, तो हमारा प्रेजेंटेशन ही बहुत बड़ा एक टास्क है, तो वी हैव टू प्रेजेंट इन इफेक्टिव मैनर। तो अच्छी तरह से हमें प्रेजेंट करना, कैसे हम प्रेजेंट करें, तो हमें जो है इसकी जो है स्किल्स चाहिए। इसके लिए आप जो है MS ऑफिस कर सकते हो, एंड लाइक आप फिनेंस लिया हो या इंटरनेशनल बिजनेस लिया हो, फॉरेन ट्रेड लिया हो, और एनी जो है आपने जो है दूसरे फील्ड सेलेक्ट किया हो, अकाउंटिंग फील्ड, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है टैली ERP9 एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ये टैली के ज़रिए से आप जो है बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हैं, जो आपको जो है अपने जो है आगे की लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड सॉफ्ट स्किल्स, ये कैसा जो है मैनेज करना है, और कैसा जो है टॉलरेंस सीखना है, और कैसा हमारे पास पेशेंस आना है, बहुत सारे जो है सॉफ्ट स्किल्स हैं। हमारे स्किल्स ही के ज़रिए से हमें जो है आइडेंटिफिकेशन मिलती है। आवर स्किल्स इज रिकग्नाइज्ड अस, हमारा स्किल्स जो है, हमारा स्किल्स ही हमें रिकॉग्नाइज करता है। नोबडी इज रिकॉग्नाइज अस, our skills and our talent, whatever the skills we have, it will recognize। जो सलाहियत हमारे पास मौजूद है, जो स्किल्स हमारे पास मौजूद है, यही स्किल्स हमें जो है एनरिच करती है, यही स्किल्स हमें रिकॉग्नाइज करती है। अगर हम अपने आप को रिकॉग्निशन चाहते हैं, तो हमारे स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। और स्किल्स कैसे बढ़ेंगे? इन सर्टिफिकेट कोर्सेज के जरिए से हम अपना एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स को हम बढ़ा सकते हैं। एंड नेक्स्ट, बहुत सारे शॉर्ट टर्म ऑनलाइन कोर्सेज भी ऐसा है, लाइक MOOC। We have one platform, MOOC, government's platform, massive open online courses, under which we have a platform like called SWAM, where we can get free education. There are hundreds of courses from which we can get free education। बहुत सारे ये सोचते हैं कि चलो हमें पढ़ने की इस्तिदात ख़त्म हो गई, पढ़ने की ताकत ख़त्म हो गई और हम खर्च नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे हालत में हम क्या कर सकते हैं? आसानी से फ्री कोर्सेज कर सकते हैं MOOC के ज़रिए से। स्वयं एक ऐप है, एप्लीकेशन। सो स्वयं एप्लीकेशन के ज़रिए से हम आसानी के साथ हमें एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकते हैं। लाइक आपने एडमिशन, आपने जो आप रिक्रूट हो गए, लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, लाइक आप रिक्रूट हो गए लाइक मार्केटिंग मैनेजर, तो आपको चाहिए कि मार्केटिंग एथिक्स क्या है, तो मार्केटिंग कंज्यूमर बिहेवियर्स क्या है, हम कैसा जो है कंज्यूमर के साथ बिहेव करें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर देयर, हाउ वी कैन डील विद देम, कैसा हम जो है उनके पास डील करें। तो बहुत सारी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होता है वाइल वी आर एंटरिंग इनटू द जॉब। हम जब जॉब के लिए जाते हों या कोई अच्छी प्लेसमेंट के लिए जाते हों, तो हमें जो है बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो हम जो है घर बैठे फ्री ऑनलाइन कोर्सेस आसानी के साथ हम जो है पढ़ सकते हैं। लाइक इसके अंदर जो है बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्सेस हैं, मैनेजमेंट कोर्सेस के अलावा बहुत सारे कोर्सेस हैं, लाइक कॉमर्स स्ट्रीम्स के हैं, आर्ट्स के हैं, बहुत सारे कोर्सेस ऐसे हैं जो आप विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल रुपी यू कैन परस्यू द कोर्स। आप 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप आसानी के साथ ये सारी चीज़ें आसानी के साथ पढ़ सकते हैं और इल्म हासिल कर सकते हैं। कैसा? ऐसा जो है स्वयं के ज़रिए से, जो MOOC का जो है लाया हुआ है, MOOC के अंदर में है। तो MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसकी वजह से बहुत सारे कोर्सेज हैं, इस कोर्सेज को आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, जिससे आपका स्किल्स बढ़ेगा। एंड फाइनली, नाउ इट इज़ अवर बिग टारगेट that we have to become an IAS officer, we have to become an IPS officer, we have to become an IRS officer, and we have to be a part of the community, and we have to be a part of the service society। तो आपके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, लाइक सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स, जिसके ज़रिए से आप आसानी से जो है अपने आप को पेश कर सकते हो। लाइक आप UPSC ले लो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लाइक SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन,
like RRB, Railway Recruitment Board, IPBS, TNPSC, MPSC, KPSC. सो इसके ज़रिए से आप जो है आसानी के साथ गवर्नमेंट जॉब में दाखिला हो सकता है. वन थिंग I'd like to mention here, in each and every state there is a certain percentage of quota for Muslims. For every community there is certain percentage of quota. We have to fulfill our quota. Once we become once we must be eligible, then only we have to fulfill that particular quotas. तो हर एक को जो है चाहत ये होती है कि हम जो है कुछ पढ़े, कोई ना कोई काम कर ले, अच्छी इनकम मिल जाए तो चले, बस काफ़ी है. मगर हमारे इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम भी एक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब में जो 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 जॉब्स जो है जो रिक्रूटमेंट्स गवर्नमेंट देती है उसके अंदर हम भी जो है एक पार्ट बने, और जो कोटास हमारे लिए दिया जाता है वो कोटा में हमें भी जो है शामिल हो और उस जॉब्स को हमें भी ले. आपको पता है कि बेसिक पे फॉर द क्लरिकल पोस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स का बेसिक पे क्लरिकल पोस्ट में ही इतना है कि आप आसानी के साथ माहाना 25,000 तनख्वाह ले सकते हो. बेसिक फॉर द क्लरिकल पोस्ट. Okay, so it is a good opportunity that we have to crack competitive exams and we are in the good position in the सोसाइटी में गुड पोजीशन जाने के लिए, हम गुड पोजीशन में हमारा जो है जगह बनाने के लिए हमको जो है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम जो है हिस्सा लेना और हिस्सा लेकर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हम क्रैक करना. और इसके अलावा बहुत सारे लाइक पोस्ट हैं, लाइक क्लरिकल पोस्ट से शुरू होकर तहसीलदार, असिस्टेंट टू तहसीलदार, ऐसा बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें जो है हम आसानी के साथ हिस्सा ले सकते हैं और आसानी के साथ हम उसमें भी एक पार्ट बन सकते हैं. तो इसके लिए मोहतरम माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने जितने ऑप्शंस मैनेजमेंट के स्ट्रीम से देखा, एक बहुत वंडरफुल ऑप्शन है. हमको इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना है. सो इनिशियली आई टोल्ड यू दैट मैनेजमेंट it's open for all. We have to choose the stream, we have to choose the discipline based on our capability. हम हमारे कैपेबिलिटी के लायक, हमारे हैसियत के लायक, हमारी इस्तिदात के लायक हमको जो है क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी डिसिप्लिन चूज करनी पड़ेगी. You do one thing, you must remember, once we are entering into the discipline, we should never give up. अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में आपने दाखिला ले लिया तो आप जो है कॉन्फिडेंट के साथ रहिए. किसी हाल में, चाहे वो इकोनॉमिकल कंडीशन से हो, फैमिली प्रॉब्लम से हो, फिनेंशियल प्रॉब्लम से हो, हम किसी भी तरह से अपने आप को गिव अप नहीं करेंगे. हम हर हाल में इंशाअल्लाह इसको फुलफिल करके रहेंगे. इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह. तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. एंड फाइनली आई थैंक AMP फॉर द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. Thank you, sir. We are running short of time, so we will quickly take some very few important questions. The first one is, can we do BBA in India and then apply for MBA abroad for international business? Yes, ma'am, sure, you can go ahead. Yes, ma'am, sure. आप आसानी के साथ BBA हिंदुस्तान में कर सकते हो और आसानी के साथ जो है, अगर आपके पास गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशंस हो, तो आसानी के साथ आप MBA अब्रॉड में कर सकते हैं. UK is better. Okay, do we have part-time MBA option? Part-time MBA options रेगुलर मोड में बहुत सारे कॉलेजेस इरेगुलर मोड में देती है और बहुत सारे कॉलेजेस रेगुलर मोड में देती हैं. बेटर यही होगा कि MBA आप रेगुलर बेसिस में करें, तो पार्ट टाइम में आपको इतनी इनसाइट्स नहीं मिलेगी. तो इसके लिए आपको जो है रेगुलर में करना बेहतर रहेगा. Okay. What are the course content of MBA in entrepreneurship? What are the course content of MBA in entrepreneurship? एंटरप्रेन्योरशिप्स के अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेस आएंगे. एंटरप्रेन्योरशिप्स के अंदर जो है इट्स लाइक ए कॉम्बाइंड थिंग. आपको बहुत सारी चीज़ चाहिए. जैसे आप एंटरप्रेन्योर कोर्स लिया हो तो आपको जो है ह्यूमन रिसोर्स भी आएगा, मार्केटिंग्स भी आएगी और आपको फिनेंस एंड अकाउंट्स, बहुत सारे चीज़ इसमें जो है कंबाइंड होकर आएंगे. क्योंकि एंटरप्रेन्योर इज ए लीडर, इज ए ओनर, सो ही हैज़ टू फेस ऑल दोज थिंग्स. In that circumstances, everything will covers under the entrepreneurship. Okay. And can you please say a few words on digital marketing?
डिजिटल मार्केटिंग, एज वी नो दैट, अभी हमें पता चला, आज हमें जो है देखते ही रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो फिजिकल मार्केटिंग का जो ऑप्शन रहा वो अभी पूरा ख़त्म हो गया, और लोग आज जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बड़े हुए हैं, लाइक स्नैपडील के ज़रिए, फ्लिपकार्ट के ज़रिए, GoIbibo है, एंड बहुत सारे alibaba.com से, ऐसा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसकी वजह से जो है डिजिटल मार्केटिंग की स्कोप बढ़ गई। तो बेहतर यह है कि हम डिजिटल मार्केटिंग को ऑप्ट करें, जिसकी वजह से हमें बेहतर करियर की स्कोप मिल सकती है। Okay. How to do MBA from abroad? MBA? From abroad. MBA come abroad. There are most of the online courses are there. You can pursue your MBA course from your India itself. आप हिंदुस्तान में रहकर ऑनलाइन के ज़रिए से बहुत सारे यूके के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ऑनलाइन में MBA कंडक्ट कर रही हैं। इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ हिंदुस्तान में रहकर आप MBA अब्रॉड के कॉलेजेस में, रेप्यूटेड कॉलेज से कर सकते हैं। Okay. Next, which is a better option, MBA from IIM or some MBA college abroad? It's about our potential, but I can't prefer anything. Both are good. IIM also good, and we can go abroad. That also good. Based on our financial background, we can decide. Okay. What all halal jobs available in finance sector? Halal jobs available, like you can go as a finance manager, like you can become just a minute, like you can become a tax assistant, like you can become a personal finance advisor, from which we can provide halal informations. Okay. Next, which college offer MBA in sports management? Sports management, I don't know, I'll let you know later. Okay. Next, colleges in Mumbai that offers BBA specialization in foreign trade and other such unique subjects. No, ma'am, I have not went through about the Mumbai because as I'm in Okay. Tamil Nadu, so deeply regret for the inconvenience. Okay. Okay, thank you. No Thank problem. Next one. With growth of automation and artificial intelligence, do you see bright career or challenging time for MBA in logistics? Sorry, ma'am. I'll Can you please repeat. repeat? Yes. Yeah. With growth of automation and artificial intelligence, do you see bright career or challenging time for MBA in logistics? Yes, ma'am. You have a bright career for logistics because it is a big. Instead of artificial intelligence, there is a scope for logistics in and around the universe. Okay. Next is this question is from a parent. Yes. Any student who joins BBA course will hardly be around 18 years. My question is whether the student is mature enough to decide what type of skills he has mastered and which stream he has to choose, whether it is logistics or finance or foreign trade. So we know very well about our sons and daughters. We know about their qualities and their skills. According to the skills, if the students they don't know, they doesn't aware about their career, means as a parent we have to advise them and we have to show the right path. Okay. Next, sir, ICWA क्या है और उसमें क्या jobs मिलती हैं? ICWA ये जॉब है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। जैसा कि एवरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी एक ऑप्शंस है, पूरे इंडस्ट्री जितने भी इंडस्ट्रीज है उसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट यही है कि वो जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन व्हेन बिकम्स पॉसिबल व्हेन द कॉस्ट इज रिड्यूसेस। सो कॉस्ट इट्स डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट। वो बिजनेस, एक बिजनेस की जो है तरक्की, एक बिजनेस की जो है अपलिफ्टमेंट, उसके जो है प्राइसिंग पॉलिसी से, उसके कॉस्ट से जुड़ा हुआ है। अगर आप जो है ICWA करोगे तो ICWA के जरिए से आप जो है कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अपने कंपनीज को हेल्प करोगे कंपनी के अपलिफ्टमेंट के लिए। और ICWA में जो है हमेशा से जो है इसके लिए स्कोप रहा है और इंशाल्लाह इसकी उम्मीद है कि आगे चलकर भी इसकी स्कोप रहेगी। तो it's mainly about the management decision and costing of the organization. Okay, this is the last question. Is business management and business administration same?
I mean, BBM and BBA, are they same? Both are same, both are similar. In Okay. both the courses, they have the similar papers, and they are studying the same thing. And sometimes most of the universities and most of the deemed universities, they set BBA as a BBM. So both are same, Oh, more or less. okay. Okay, thank you, Tawfiq sir. It was a very comprehensive and an insightful session.